रुका है? हाँ? सही तो रुका है? चेक कर लिया ना? ये दवा दे स्टार्ट ठीक ठीक है। गूगल क्रोम खोल लीजिए। हाँ माय कॉपी दे सभी विद्यार्थी ये ध्यान दे लें कि वो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें और जब उनसे क्वेश्चन के लिए बोला जाएगा तब वो अपना माइक्रोफोन ऑन करेंगे। बीच में कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं क्लिक करेगा और ना ही उस आइकॉन को यूज करेगा। आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जो जरूरी होगा वो आप नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर आशीष जोशी सर, माय डियर क्लोज कलीग डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी and Dr. Pragya, and dear students, welcome to this third day of online lecture series organized by Department of Zoology, Government Postgraduate College, Saidabad, Prayagraj. It's my proud privilege to introduce today's eminent speaker, Dr. Najia Rasool Latifi. Dr. Latifi is a well-known and most popular environmentalist of global fame and currently working as senior assistant professor and coordinator EVS in Cluster University Jammu in the state of Jammu and Kashmir. She is deeply involved in Clean and Green India mission and devoted for the conservation of plant and animal species along with water and other natural resources. She has several years of teaching and research experience. As a good researcher, she has published a number of research papers in indexed and international journals of global repute. She has successfully organized several national and international conferences, webinars, and delivered lectures at several occasions as a resource person. Moreover, Dr. Latifi is pioneer in introducing the concept of vertical gardening with the help of plastic bottles in Jammu and Kashmir, though her area is having severe noise pollution. This is not all about her. Dr. Latifi has some more feathers in her cap too. She is awarded with several prestigious awards, including Dr. APJ Abdul Kalam Green Environment Promotion Award in 2020. बहुत कुछ मैडम के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन अंत में मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि डॉक्टर नाजिया जी का एक महान सकारात्मक व्यक्तित्व व कृतित्व ही इनकी परिभाषा है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। मैडम, आपका राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बच्चे ज़्यादातर से बच्चे ग्रामीण प्रवेश के हैं, इसलिए अच्छा रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप जो है हिंदी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैडम, आपका एक बार पुनः स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें। डॉक्टर लतीफ़ी मैम। Thank you so much for your overwhelming introduction, though I hardly deserve that much of accolade. Good evening, everyone here. Good evening, dignitaries. Good evening, professors, and my dear students. I hope what I can see from this, these are the students of BSc and MSc.
I'm right? yes, PSC और MSc के हाँ जी मैडम जी जी तो I have been assigned 3 topics. One is ozone depletion and the protocol related to ozone depletion. Second is global warming or greenhouse effect, and third one is little bit of environmental laws. तो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही आपको बोलते जाऊं. तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज ओजोन लेयर या ओजोन लेयर एंड व्हाई दिस ओजोन लेयर इज depletion of ozone layer. I am audible. हाँ जी मैडम I am audible. जी. सबसे पहले मैं ओजोन लेयर को डिस्कस करूंगी. ये जो बेटा ओजोन है, ओजोन आप सब जानते होंगे. ओजोन O3 कॉम्बिनेशन है 3 ऑक्सीजन एटम्स का. 3 ऑक्सीजन एटम्स मिला के जो है वो ओजोन बनाते हैं. ओजोन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. और ये ओजोन जो है नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. और एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस which surround our earth. अर्थ जो है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस which surround our earth is called as atmosphere. एटमॉस्फेयर हमारी धरती को जो है घेरे हुए है and it is attached to the earth's surface because of gravitational force of earth. Because of gravity it is attached to the earth's surface. It is covering our earth surface and there are different layers in atmosphere. और एटमॉस्फेयर की different layers हैं. One is सबसे नीचे वाली लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. उसके ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं. उससे ऊपर जो है सब मीजोस्फेयर कहते हैं. देन आइनोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो आई विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट. तो हियर आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन ओजोन लेयर. ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय पीपीटी ऑल्सो. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ पहले डिस्क्रिप्शन बता दूं. देन आई विल बी शेयरिंग माय पीपीटी so that you can get to know various terms. ये जो ओजोन लेयर है ये नेचुरली हमारे ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली परत में भी होता है और उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे भी प्रेजेंट होता है. तो केमिकल कंपोजिशन इसकी O3 ही है, चाहे वो ट्रोपोस्फेयर में है या स्ट्रेटोस्फेयर में. ये O3 ही है. लेकिन जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है हम इसे कहते हैं बैड ओजोन. ओजोन इज कैटेगराइज्ड एज गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. सेम केमिकल कंपोजिशन है. केमिकल फॉर्मूला इसका O3 ही है. लेकिन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नीचे वाली परत में जब होता है सबसे नीचे वाली, वेयर ऑल ऑफ अस सर्वाइव, वेयर ऑल वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस, पोल्यूटेंट यहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल साबित होती है. ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन प्रेजेंट होता है, और ट्रोपोस्फेयर में ओजोन एक तो नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसकी 0.05 पार्ट्स पर मिलियन की इसकी कंसंट्रेशन नेचुरली एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में होती है. लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और बढ़ती कैसे है? बिकॉज ऑफ वेरियस प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ओजोन ट्रोपोस्फेयर में एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट का काम करता है. बहुत से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, आई होप आपको पता होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलीज्ड फ्रॉम द सोर्स. चिते नहीं आ रही आवाज. डायरेक्ट नहीं चल रहा क्या? किसी चला रहा नहीं चल रहा क्या? डायरेक्ट चला तब यहाँ नहीं रहा होगा. इसको फोन करा है, इसको क्या फायदा? कनेक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओजोन. तो ओजोन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, here it is called as good ozone because here it acts as a protective layer. It covers from harmful ultraviolet radiations. Let me share my presentation first. चिट्ठी जलाओ है? हैं? प्रेजेंटेशन जलाओ है? एक फोटो खींचो. I hope my presentation is visible. हाँ जी.
Yes, ma'am. It's visible. जी जी नहीं आता ना। देखो, जैसे बच्चों मैंने कहा कि ओजोन क्या है, O3, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये ब्लूइश कलर की होती है गैस, जो कि अगर डायरेक्टली हमें सांस से लेना पड़े, ब्रीद इन करना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत डिजास्ट्रस है, बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें कॉज कर सकता है। हमें ही सिर्फ नहीं, इट कैन कॉज नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, बिकॉज यू बीइंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, तो आपको ये पता होगा टर्म्स, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोपिगमेंट, ये होता है। और स्पेशली जो हमारे टायर्स वगैरह हैं, इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ओजोन, जब ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। लेकिन 90% ऑफ द अर्थ ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जहां पे इसको हम ओजोन वहां पे हम इसे ओजोन लेयर कहते हैं। या क्योंकि 10 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर होता है, और 10 से 50 किलोमीटर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और देखा गया है 15 से लेके 35 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर के 15 से लेके 35 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा वहां पे ओजोन प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ दिस ओजोन लेयर between 15 to 35 kilometers in the stratosphere, that part of ozone layer is called as ozonosphere. That part of stratosphere is called as ozonosphere. उस part को ही ozonosphere कहते हैं। And ozone, आप सबको पता होगा कि it is very much important because it absorbs ultraviolet radiations. Now, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ओजोन को गुड ओजोन और बैड ओजोन में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। गुड ओजोन हम इसे तब कहते हैं जब ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, क्योंकि वहां पे ये हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और वहां पे नेचुरली बनता है। वो मैं आगे बताऊंगी ये कैसे बनता है। और हम बैड ओजोन इसको तब कहते हैं, और देखा गया है स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 10 पार्ट्स पर मिलियन तक होती है। और बैड ओजोन हम इसको तब कहते हैं जब ट्रोपोस्फेयर में, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, जहां पे हम सब रहते हैं, वेयर ऑल वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस, एंड if it is present here, it acts as a pollutant. It causes various pulmonary problems, it causes various cardiovascular problems, it causes irritation to nose, it causes irritation to eyes, it causes various respiratory problems, it causes emphysema, it causes bronchitis, मतलब bronchitis हो सकता है, emphysema हो सकता है, air sacs में problem हो सकती है, asthma जिसको आप अस्थमा भी पढ़ते होंगे, तो वो सारी problems जो होती हैं इससे होती है। और यही bad ozone जो है ट्रोपोस्फेयर में, ये बिकॉज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे वो फिर बनता है। अब बेसिकली ओजोन जो है, आई एम जस्ट स्किपिंग सम ऑफ द स्लाइड्स व्हिच आई थिंक are of not that much use to you people. अब ओजोन लेयर जो है, जैसे मैंने कहा कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी 3 किस्म की होती हैं। वन इज अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन, अनदर वन इज अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, एंड अनदर वन इज अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस हैं, these have the wavelength ranging between 315 to 400 nanometer, and it contributes about 7% of the solar flux. And mind it, these are not absorbed by this ozone layer. जो ozone layer है वो ultraviolet A radiations को absorb नहीं करता है, but thankfully, thank God, fortunately enough, these are not disastrous even. इनसे हमें कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता है, ये सीधा जो है जमीन तक पहुंचती है। I am talking of ultraviolet A radiation. Now the ozone layer actually absorbs ultraviolet B radiations और ultraviolet C radiations. तो ultraviolet radiations की wavelength जो है 280 से 350 nanometer है, and it contributes about 1.5% of solar flux. And these are partially absorbed by ozone layer. एंड अल्ट्रावायलेट सी जो है ये बहुत लीथल हैं, बहुत डिजास्टर्स हैं, बहुत डेंजरस हैं, बट फॉर्चुनेटली इनफ दीज आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय ओजोन लेयर। सो अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन एब्सॉर्ब नहीं करता है ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट बी पार्शली एब्सॉर्ब करता है, और ये नुकसानदेह होती हैं, लेकिन ये तब नुकसान पहुंचाते हैं जब बहुत देर तक इनसे एक्सपोजर होता है। और अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन जो है वो दीज आर वेरी लीथल, वेरी डेंजरस, बट दे कॉज डैमेज ओनली आफ्टर दे कॉज डैमेज, बट फॉर्चुनेटली दीज आर completely absorbed by ozone layer. Now, how actually ozone layer is formed or how it is depleted?
Basically, there are two processes of formation of ozone layer and again depletion of ozone layer. क्या होता है नेचुरल प्रोसेस में? क्या होता है नेचुरली? क्या होता है कि ओजोन जो है, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है O3, वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन लेयर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है. देयर इज सम प्रॉब्लम, इट इज नॉट मूविंग. ओजोन क्या करता है एटमॉस्फेयर में? क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स. और ये ऑक्सीजन एटम जो है फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, जैसे आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है. और ये ऑक्सीजन एटम्स जो हैं फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिला के बनाते हैं ओजोन. तो हियर इट इज नेचुरली फॉर्म्ड इन दिस वे. इसी तरीके से जैसे ये बनता है, इसी तरीके से ये टूटता भी है. क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल जो है, ओजोन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. तो इस तरीके से नेचुरली बनता है. मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और बनाता है और ओजोन मॉलिक्यूल. इसी तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेस देन 240 नैनोमीटर्स एब्जॉर्ब करता है और वो टूट जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन एटम में. मतलब बन भी रहा है और टूट भी रहा है. तो मतलब ये नेचुरली जो है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन बैलेंसिंग वन अनदर. सो जो ओजोन डिप्लीशन है, तो इसका मतलब है ओजोन डिप्लीशन इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल प्रोसेस. तो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर. मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. नाउ व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या ओजोन होल क्या होता है? जब ओजोन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ओजोन होल. बेसिकली ओजोन होल इज अ मिसनॉमर. ऐसा नहीं है कि वहां पे ओजोन बिल्कुल खत्म हो जाती है. जब भी ओजोन एवरेज में देखा गया है कि ओजोन की एवरेज थिकनेस जो होती है 300 डॉप्सन यूनिट होता है. यूनिट ऑफ, जैसे हम किलो, केजी होता है, मीटर होता है, वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. इसी तरीके से ओजोन का मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डॉप्सन यूनिट. तो ऑन एन एवरेज जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है. वर्ल्ड ओवर में बता रही हूँ. और अगर हम देखें ट्रॉपिक्स में ये 250 डॉप्सन यूनिट होती है और नॉर्दर्न और सदर्न पोल में ये 450 डॉप्सन यूनिट होती है. लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो वी कॉल इट एज अ ओजोन होल, और वी कॉल दैट द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड. सो इट इज अ मिसनॉमर. It is actually present there, but its concentration when decreases below 200 Dobson unit, then we consider it as a ozone hole. और सबसे पहले ओजोन होल को जो डिस्कवर किया गया था अंटार्कटिका में, फार्मान टेल ने 1985 में ये डिस्कवर हुआ था ओवर अंटार्कटिका. और जो ओजोन लेयर थी ये डिस्कवर की है फ्रेंच फिजिसिस्ट ने चार्ल्स फैब्रे और हेनरी ब्यूसन ने 1913 में. तो मतलब ओजोन डिप्लीशन जो है दैट इज कॉज्ड because of anthropogenic factor, because natural process is not actually responsible for depletion of ozone layer. क्योंकि naturally in one way if it is getting depleted, at the same time it is getting formed also, so it is not causing depletion of ozone layer. Now there are so many anthropogenic factors which are actually responsible for depletion of ozone layer, and those very factors are our activities. We use coolants, we use these solvents, we use these fire extinguishers, we use these fumes, plastic foams, and these release various type of ozone depleting substances into the atmosphere, and which then reacts with ozone and deplete the ozone layer. क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज से कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं. और वो क्या क्या हैं? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो क्लोरोहाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो मिथाइल ब्रोमाइड है,
वो हेलॉन्स हैं, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये हम फ्रीजर्स में इस्तेमाल करते हैं, एसी में इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल करते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हम अल्टरनेटिव्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं, या हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, या हम एज सॉइल फ्यूमिगेंट यूज करते हैं, या हम एडहेसिव में यूज करते हैं। और जिसकी वजह से ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और अल्टीमेटली ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होते हैं। और इनमें से सबसे खतरनाक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में रिलीज होता है ये बहुत देर तक ट्रोपोस्फेयर में रहता है, ये बारिश के साथ नीचे नहीं आता है। इसका क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है और ये 20 से 40 साल लगते हैं इसको ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाने में। मतलब अगर आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ है तो आज से 40 साल तक वो एनवायरनमेंट में परसिस्ट करेगा और वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में नियर अबाउट 1 सेंचुरी 100 साल तक ये वहां पे रह सकता है। तो आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई है जिसकी वजह से दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैव बीन कंप्लीटली फेज्ड आउट, ये बैन हो चुके हैं। डेवलप्ड नेशंस में तो 1996 में ही हुए थे और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है 2010 में CFCs बैन किए गए। लेकिन अभी भी डैमेज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं उनमें अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें है अभी ये, और जो पहले इस्तेमाल हुआ है वो अभी भी एनवायरनमेंट में है और एनवायरनमेंट ट्रोपोस्फेयर से लेके वो स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होते जा रही है। जैसे यहाँ देख सकेंगे आप कि इस स्लाइड में कि ट्रोपोस्फेयर में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं ये अल्टीमेटली स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो जाता है, वहां पे इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब एक्ट करती हैं, खुद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डेंजरस नहीं है। अगर हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन खुद बहुत ही इनएक्टिव सी कंपाउंड है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है वहां पे इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्ट करती हैं और वो अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट है क्या? यस बेटा, अल्ट्रावायलेट है क्या? आई एम सॉरी, क्या बोल रहे बेटा? अल्ट्रावायलेट ये है क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेटा ये सन एमिट करता है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं जो सन एमिट करता है इन रेडिएशंस को। समझ आ गया? जिसका मैंने पीछे भी बताया, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, विजिबल लाइट से इनकी कम वेवलेंथ होती है पर एनर्जी ज्यादा होती है। ये रेडिएशंस है, सन जो है ना वो डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, दिस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज। तो जमीन तक सारी रेडिएशंस नहीं पहुंचती हैं, जमीन तक वही रेडिएशंस पहुंचती हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ कम होती है और जितनी वेवलेंथ कम होती है उतनी एनर्जी ज्यादा उनमें होती है। समझ आया? ये सन की रेडिएशंस हैं जो कि जमीन तक पहुंचती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का कुछ ही पोर्शन ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बेटा समझ आया? हाँ, तो अब मैं ये समझा रही थी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये खुद से इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, वो इतना नॉन पोल्यूटेंट है। लेकिन यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर समझ आया ना आपको? ट्रोपोस्फेयर होल एटमॉस्फेयर है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे नीचे लेयर 10 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर की लेयर है हम उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ऑन एन एवरेज 10 से 16 तक किलोमीटर तक। और उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जहां पे हम नहीं होते, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन लेयर होता है ये एब्जॉर्ब करती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जब ये ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन है ना इसमें, क्लोरीन फ्लोरोकार्बन। तो वहां पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन CFCs पे एक्ट करते हैं तो इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्लोरीन बाहर आ जाता है, क्लोरीन जो है वो बाहर रिलीज होता है और ये क्लोरीन एक्चुअली ओजोन के साथ कंबाइन होता है। Cl combines with this very ozone and ultimately क्लोरीन ऑक्साइड बनता है और इस ओजोन को वो तोड़ देता है। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना
CFC का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्लोरीन जो है वो रिलीज होता है। क्लोरीन जो है वो O3 के साथ रिएक्ट होता है, Cl plus O3 gives ClO. You can write down Cl plus O3 gives ClO. मतलब क्लोरीन ऑक्साइड बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन, एक ओजोन मॉलिक्यूल इसने रिलीज कर दिया ना, तोड़ दिया ना, समझ आया आपको? यस मैम। हाँ, अब क्या आ रहा है, अब ये जो ClO है जो बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ये ClO दूसरा ओजोन मॉलिक्यूल लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप अपनी राइटिंग उसमें अपने इस पे रजिस्टर पे लिख सकते हो कि पहली रिएक्शन आएगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेयर में, लेट इट बी 2 ओजोन ही है आपके पास, मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपके पास 2 ओजोन मॉलिक्यूल है, O3 और O3 है, ठीक है। अब आपने CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसमें से एक क्लोरीन रिलीज हुआ, वो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट होगा, जो आपके पास एक ओजोन है, तो बनाएगा, उस ओजोन को तोड़ देगा, O3 प्लस Cl बनाएगा, ClO प्लस O2, ठीक है ना। अब ये जो इसी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट ClO है, वो आपका दूसरा ओजोन भी ले लेगा और बनाएगा क्लोरीन और ऑक्सीजन, ट्वाइस O2 और क्लोरीन। मतलब एक CFC ने, एक क्लोरीन एटम ने 2 ओजोन को तोड़ दिया। आपको समझ आ गई ये बात? Yes, I'm audible? यस मैम। हाँ जी। मतलब एक क्लोरीन एटम ने 2 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ा और फिर खुद सेफली फिर वापस आ गया बाकियों को तोड़ने के लिए, बाकियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। मैंने रिएक्शन आपको बताई, क्लोरीन प्लस O3 gives ClO प्लस O2। अब इसी के जो ClO इसी रिएक्शन में हमारा बना, दैट विल रिएक्ट विद अनदर ओजोन O3 और बनाएगा Cl प्लस ट्वाइस O2, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब एक क्लोरीन एटम ने 2 ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया और खुद सेफली फिर से वापस आ गया ठीक ठाक ऐसा। और मतलब एक क्लोरीन एटम देखा गया है, ये चेन रिएक्शन चलते जाएगी, है ना। एक ही रिएक्शन, अगर सिर्फ एक क्लोरीन एटम होगा, वो ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन द फेट ऑफ दिस ओजोन लेयर इफ देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्लोरीन एटम इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अगर नेट चलावा तो कहूँ भेजा, अगर एक मिलियन, एक ओजोन क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम अगर मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, तो आपको खुद अंदाजा होगा अगर वहां मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्लोरीन एटम्स होंगे तो कितना ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे हमने पढ़ा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सारे भी जो है ओजोन को डिप्लीट करते हैं और जिसकी वजह से ओजोन को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ओजोन की डिप्लीशन होती है। जब ओजोन की डिप्लीशन होती है, इसकी कंसंट्रेशन अगर 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं ओजोन होल, ठीक है। अब ओजोन जब डिप्लीट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेफिनेटली जब ओजोन डिप्लीट होगा तो इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो जमीन तक पहुंचेंगी। जब वो जमीन तक पहुंचेंगी, जितने भी जमीन पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एबियोटिक कंपोनेंट भी जो हैं उनको इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ह्यूमंस को बहुत नुकसान होगा, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग। हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना, हम कहते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे तो एक तो ब्लेमिशेस वगैरह के लिए होता है, वो कहते हैं कि नहीं आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ क्योंकि नहीं तो एजिंग जल्दी हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है। इसी तरीके से कैटरेक्ट आंखों में हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिफरेंट आई डिजीजेस हो सकती हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, खासकर जो सीड्स पे बहुत ज्यादा, सीडलिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ में इफेक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है नीचे तक पहुंचती हैं। इसी तरीके से जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं खासकर, उनकी डेथ हो जाती है। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वाटर बॉडीज में, उनकी डेथ हो जाती है और उनपे पूरा का पूरा एक्वेटिक बायोटा डिपेंडेंट होता है और अल्टीमेटली जो फूड चेन होती है वो इफेक्ट हो जाती है बायो इस पे भी। इसी तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स में भी जो है, एंड not only domestic animals, सारे animals में जो है, if one is exposed to ultraviolet radiations, one can get eye and skin cancers. इसी तरीके से जो marine animals हैं जैसे young fishes हैं, shrimp larvae हैं, crab larvae हैं, वो भी threatened होते हैं because of this ultraviolet radiations. इसी तरीके से
जो एबियोटिक कंपोनेंट जैसे मटेरियल है आपका, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, फैब्रिक है, जैसे मैंने रबर का कहा, जो आपकी जो रबर टायर्स जो होते हैं, या आप जो इंसुलेशन के लिए यूज करते हो, जो वायर्स के ऊपर जो लगाते हैं, या जो हम एज साउंड प्रूफ खिड़कियों पे लगाते हैं या दरवाजों पे जो रबर हम लगाते हैं, दैट गेट्स क्रैक्ड बिकॉज ऑफ दिस ozone depletion, and it causes so many effects to human life, to plants, to microorganisms, to marine life. It also decreases our immunity. And not only this, it can also cause damage to abiotic components. Now, if it is getting, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिसे हम ओजोन लेयर को बचा सकते हैं? तो ऑब्वियसली हमने कहा कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं। तो उन चीजों को हमने जो है कम से कम इस्तेमाल करना है, और हमें ज्यादा कोशिश करनी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, मिनिमाइजिंग नाइट्रोजन फ्यूल्स को। इसी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हमने अल्टरनेटिव यूज करने हैं, जैसे जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बेसिकली अल्टरनेटिव्स ही हैं, और अब हम हाइड्रोकार्बन्स तक पहुंचे हैं जो हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी मशीनरी वगैरह जो है उसको ट्यून्ड अप रखना है, ताकि डिफरेंट किस्म की जो हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो, और ट्रोपोस्फेयर से वो स्ट्रेटोस्फेयर तक ना पहुंचे, और अल्टीमेटली वो हमारे ओजोन को डिप्लीट ना करे। तो और एक इसी के लिए ये आ गया इंडिविजुअल एफर्ट। इतना ही नहीं, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सिटी है कनाडा में जहाँ पे ये प्रोटोकॉल हुई थी, जहाँ पे 197 कंट्रीज ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, जिसमें बताया गया, जिसमें क्या किया है कि दिस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन, दिस डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, कि किस तरीके से फेज आउट करने हैं वेरियस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इस प्रोटोकॉल के तहत डेवलपिंग कंट्रीज में बैन किए गए हैं वो सब्सटेंस जो कि ओजोन को, उनकी फॉर्मेशन और उनका यूज जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। और इसी प्रोटोकॉल में डिफरेंट टाइम लिमिट्स दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो कब तक क्या फेज आउट कर सकते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को हेलॉन्स, जैसे हेलॉन समझते हो ना, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह जो होगा, तो कंटेनिंग कार्बन, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या कार्बन टेट्राक्लोर या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज में टाइम दिया गया था कि 1994 तक ही उनको उसे फेज आउट करने थे। जैसे मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट करते ही कहा आपको कि इनकी फेजिंग आउट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द this ozone depleting substances, except for certain alternatives which are being used, except for alternatives जो कि हम अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के, वो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, उनको बैन किया गया है, दैट हैज बीन कंप्लीटली फेज्ड आउट। पर अभी नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और वो नुकसान पहुंचाते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हेलॉन्स को डेवलप्ड कंट्रीज में 94 तक फेज आउट करना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को 96 तक करना था, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को 2020 तक जो है परमिशन थी कि तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को अभी डेवलप होना है, तो उनको ज्यादा टाइम दिया गया। उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड को 2010 तक कहा था कि फेज आउट, एंड इट हैज बीन कंप्लीटली फेज्ड आउट। नाउ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। इसके बदले अल्टरनेटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरीके से मिथाइल क्लोरोफॉर्म को 2015 में फेज आउट करना था, एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अभी तक टाइम दिया गया है कि आप 2040 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इट इज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इट वाज ऑल अबाउट योर दिस ओजोन डिप्लीशन and its harmful effects which are caused by this was all about your I tried to just limit my lecture. I didn't go into details. So it was about your this ozone layer depletion. Ozone, what is ozone? What are the factors which are causing the depletion of ozone layer? And once the ozone layer is depleted, what are the harmful effects which are caused to various living and non-living organisms? And
what are the different steps we need to take into consideration to control the ozone depleting substances so as that minimum damage is caused to the ozone layer and hence subsequent minimum loss to both plants and animals. I hope it was clear. ठीक था? समझ आया? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No doubt. No, ma'am. बेटा there are two reasons of saying yes ma'am. एक होता है कि सब समझ आ गया और दूसरा होता है कि कुछ भी समझ नहीं आया. तो I will मैम सब समझ आ गया. चलो I will take कि आपको सब समझ आ गया. ठीक है ना बेटा? हाँ मैम. थैंक यू बेटा. अब थैंक यू. अब आपका दूसरा टॉपिक जो है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है? ग्रीन हाउस आपने देखा है? ग्रीन हाउस बच्चों आपने देखा है? आई एम ऑडिबल? देखा है? Yes, ma'am. तो क्या होता है ग्रीन? कहाँ पे देखा है आपने ग्रीन हाउस? यस, कहाँ पे देखा है आपने ग्रीन हाउस? देखा है ना? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मैंने भी पहले नहीं देखा था, मैंने भी अभी देखा. नहीं देखा है ना? मैम देखा नहीं है बट इसके बारे में सुना है. हाँ जी, जिसने सुना है तो क्या होता है ग्रीन हाउस? कोई मुझे बताएगा क्या होता है ग्रीन हाउस? यस. मैम जब अर्थ के लेयर पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. नहीं, आप यू आर नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन. मैं ग्रीन हाउस पूछ रही हूँ. ग्रीन हाउस. मैम ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें मैम कुछ. मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पूछ रही हूँ, मैं ग्रीन हाउस पूछ रही हूँ. ग्रीन हाउस क्या होता है? मैम ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज में कोल्ड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, गैस हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया. सब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वातावरण में और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. अब सुनिए. कोल्ड कंट्रीज में मैम मैम को बोलने का मौका दिया जाए. अब सुनिए बेटा, यहाँ से मैंने पूछा था ग्रीन हाउस क्या होता है. मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा. मैं ग्रीन हाउस बताती हूँ क्या होता है. ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस यूजुअली आपने अपने कॉलेज में देखा होगा. यस मैम. में देखा होगा, अपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा या आपने किसी नर्सरी में देखा होगा. ग्रीन हाउस बनाया होता है. ये बेसिकली ग्लास हाउस होता है. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसमें यूज किया जाता है, ग्लास यूज किया जाता है. और इसका पर्पस क्या होता है? वो वाले प्लांट्स जो ठंडे टेम्परेचर में नहीं सरवाइव कर पाते हैं या उनका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए जो ठंडे टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर सकते हैं, उनको इस ग्लास हाउस में रखा जाता है ताकि टेम्परेचर जब आउटसाइड ठंडा हो तो अंदर टेम्परेचर गर्म रहेगा, तो जिसकी वजह से वो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे. तो ग्रीन हाउस इज अ हाउस व्हिच इज मेड मोस्टली ऑफ ग्लास to keep the temperature inside the glass house warmer than the temperature which is found outside. ठीक है? So that, and it is used to keep the plants, to let the plants grow inside the glass house, which can't grow in colder temperature, which can't survive in colder areas or colder temperature. तो this greenhouse वो वाला हाउस है जो ग्लास का बना होता है. इसलिए बनाया जाता है कि टेम्परेचर ग्लास के अंदर गर्म रहे और वो स्पीशीज, वो प्लांट वहां पे ग्रो कर पाए जो कि ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ठंड में जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो ग्रो कर पाए इस गर्म टेम्परेचर में. तो उन्हें हम कहते हैं ग्लास हाउस. ठीक है? आप जब गाड़ी में बैठते हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, आप जब शीशा गाड़ी में चढ़ाते हो तो गर्मी होती है, गर्म हो जाता है टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में. इवन ठंड में भी होता है ना. गाड़ी का शीशा जब विंडो पेन ऊपर बंद गाड़ी वो क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो जो शीशा होता है वो सोलर रेडिएशंस को अंदर आने देता है, लेकिन जो हीट रेडिएशंस है उनको बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है और गाड़ी के बाहर जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है. इज दिस क्लियर? तो दिस इज ग्रीन हाउस. एंड
सेम इज द प्रोसेस जो यहाँ पे काम ग्लास कर रहा है, जो सन रेज को आने दे रहा है और हीट रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रहा है. सेम फंक्शन इज डन बाय ग्लास बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. जो काम ग्रीन हाउस में ग्लास करता है वही जमीन पे एटमॉस्फेयर काम करता है. जो एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. समवन ऑफ यू सेड जस्ट नाउ सेड नेम सम ग्रीन हाउस गैसेस. तो वो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. वो क्या करती हैं? वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो सन की रेडिएशन को एंटर होने देती हैं. वो सन की रेडिएशन, जैसे मैंने पहले भी ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपको बताया, ऑल द रेडिएशंस कांट एंटर द अर्थ सरफेस, कांट रीच द अर्थ सरफेस. सिर्फ वो वाली रेडिएशन जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं वही जमीन तक पहुंचती हैं और जमीन को गर्म करती हैं. जब जमीन गर्म होती है तो जमीन भी रेडिएशन वापस करता है जिनको हम बोलते हैं हीट रेडिएशंस. और वो हीट रेडिएशन जब जमीन वापस भेजती है, यही जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये गैसेस जो हैं ये उन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं और उनको वापस जमीन पे भेजती हैं, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. इज दिस क्लियर? समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम. हाँ, तो अब बेटा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता या अगर हमारे जमीन को ये एटमॉस्फेयर सराउंड नहीं करता तो हमारा टेम्परेचर जो होता वो बहुत कम होता. वो कोई -18 डिग्रीज होता. कितना होता? -18 डिग्रीज. -18 जो टेम्परेचर मून का है. मून में इतना कम टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. लेकिन हमारी जमीन पे एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे धरती को बचाए हुए है. ये सोलर रेडिएशंस को आने देता है पर हीट रेडिएशंस को वापस जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारी जमीन का मेंटेन रह रहा है और ऑन एन एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है वो 15 डिग्रीज है. तो इट मींस कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लांट्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर एनिमल्स. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. प्रॉब्लम है एनहांस्ड ग्रीन हाउस, जो एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इट मींस नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. बट द प्रॉब्लम occurs when there is occurring enhanced greenhouse effect. जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है. नाउ आई विल बी शेयरिंग दिस PPT so that the things will become more clear. हेलो. यस मैम सुनिए. हाँ जी बेटा. ग्रीन हाउस हम जी बेटा. यस मैम ग्रीन हाउस गैस एनिमल को इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा. हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा फायदेमंद है. एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लमैटिक है. समझ आया? हाँ स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है. यस मैम. तो ये मैंने जैसे पहले आपको बताया ग्रीन हाउस वो हाउस होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ग्लास का बना हुआ है और ये इसलिए बनाया जाता है कि इसमें पौधे वोधे हम रखें और वो मर ना जाएं ठंड के कारण, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो गर्म रहता है. ठीक है? हाँ जी. तो जैसे आप देख पा रहे हो ग्रीन हाउस इज अ हाउस व्हिच इज मेड टू ग्रो बिल्डिंग्स. तो अब इसी तरीके से जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा टेम्परेचर कितना होता? -18 होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो कि टेम्परेचर मून का है. बट इट इज only because of the presence of this greenhouse effect that temperature of our earth is on an average about 15 to 18 degrees Celsius, which is very much important for our survival, जिसकी वजह से हम survive कर पाते हैं इस environment पे, इस planet पे.
अब जैसे मैंने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सन की रेडिएशन जमीन तक आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, और जमीन क्या है वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं। जो ये वेरियस गैसेस एटमॉस्फेयर में जो ये डिफरेंट गैसेस होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। उन सब सोलर रेडिएशंस को वो जब जमीन पे पहुंचती हैं, वो जमीन को गर्म करती हैं, और जमीन भी फिर हीट रेडिएशंस अमिट करता है। और जो जमीन हीट रेडिएशंस अमिट करता है, वो these जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो उनके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, वो उनके लिए ओपेक होती हैं, वो उनको पकड़ लेता है और फिर से जमीन पे वापस भेजता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है जमीन का जो है 15 से 18 डिग्रीज तक रहता है, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिन ब दिन जितना, जैसे ये फ्लो चार्ट है, सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, आप इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन भी कर सकते हो। सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर से गुजर के जमीन तक पहुंचती है, जमीन गर्म हो जाती है, जमीन जो है हीट रेडिएशन एमिट करती है, और वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स, वो उन हीट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती हैं और उन हीट रेडिएशन को वापस जमीन पे भेजती हैं, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो बराबर रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टेम्परेचर जो होता है जमीन का बराबर रहता है। अब प्रॉब्लम क्या कब हो रही है, जो एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑटोमोबाइल्स, दीज ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं बहुत, बिकॉज ऑफ मार्शेस फ्रॉम पैडी फील्ड्स, because of incomplete decomposition, because of thermal power plants, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये बहुत ज्यादा एमिट होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या कर रही हैं, जो थोड़ी बहुत एस्केप कर जाती थी हीट रेडिएशंस, ये उनको भी पकड़ के रखते हैं और उनको भी जमीन में वापस भेज देती हैं, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसका इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरे की पूरे थ्रू आउट द ग्लोब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Any doubt up to this? नो डाउट। अब क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए डिफरेंट, जैसे मैंने अभी कहा कि क्यों होती हैं ये गैसेस, क्यों रिलीज होती हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये रिलीज होती हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, जितनी सब चीजों की जड़ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी तो ज्यादा हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा बिल्डिंग चाहिए, हम ज्यादा पेड़ काटेंगे, ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा हमें लाइट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स यूज करेंगे, ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज करेंगे, जिसकी वजह से ओजोन भी डिप्लीट होता जाएगा, और जिसकी वजह से वेरियस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, these chlorofluorocarbons जो है, these will be released into the atmosphere and will cause this global warming. Basically, scientists don't prefer the use of global warming. Scientists जो हैं, they don't use the term, mostly they don't prefer to use the term global warming. Instead they call it as climate change, क्योंकि ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, इससे क्लाइमेट पूरी चेंज होती है। क्लाइमेट समझते हो ना, एवरेज ऑफ वेदर फिनोमिना ओवर मेनी इयर्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो बेसिकली ये जो हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इससे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रही है। इसलिए साइंसदान जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो instead of using the term global warming, they prefer to use the term climate change. Climate change इसको यूज करते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है। आप देखोगे कि अब क्या हो रहा है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, बट समर्स आर गेटिंग मोर वार्मर, बट विंटर्स आर गेटिंग मोर कूलर। आपने देखा होगा ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पर सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। आपने एक्सपीरियंस किया है ये चीज? यस मैम। This greenhouse effect, we are experiencing extremes of temperature. हमें गर्मी जब होती है तो बहुत गर्मी होती है, जब सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान इससे होता है?
सबसे पहले जो है हमारा सी लेवल जो है वो राइज करेगा। सबसे पहले तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो वाली स्पीशीज, अगर ह्यूमन बींग्स भी गर्म टेम्परेचर में नहीं रह पाएंगे, होता है ना हीट वेव्स के दौरान बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है, हम पढ़ते हैं ना न्यूज में, हीट वेव आई, गर्मी के कारण इतने लोगों की डेथ हो गई, या बहुत ज्यादा ठंड हो गई उतने लोगों की डेथ हो गई, जानवरों की डेथ हो गई, प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग जब होगा या क्लाइमेट चेंज जब होता है तो क्या होता है, वो वाली स्पीशीज, वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वाले प्लांट्स जो गर्म टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। या तो डेथ होगी या उनमें कुछ डिजीजेस हो जाएंगी या उनकी शिफ्टिंग होगी, माइग्रेट होंगे। वो क्या होंगे, जो ट्रॉपिकल वाले होंगे वो टेम्परेट में चले जाएंगे, जो टेम्परेट वाले होंगे वो पोलर एरियाज की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब उनकी माइग्रेशन होगी। तो जब माइग्रेशन होगी तो बहुत से बाकी फैक्टर्स भी इफेक्ट होंगे, मतलब एक फूड चेन जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। इतना ही नहीं, कुछ प्लांट स्पीशीज के लिए पॉलिनेशन के जो बर्ड्स भी अगर शिफ्ट हो गए या माइक्रो या इंसेक्ट शिफ्ट हो गए तो उसकी वजह से पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होगी। जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, अगर बर्ड्स हैं या कोई इंसेक्ट है, अगर वही माइग्रेट हो रहा है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीडलिंग नहीं होगा, प्लांट सैपलिंग कैसे बनेगा, ट्री कैसे बनेगा, तो उससे भी जो होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। इसी तरीके से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ सी लेवल जो होगा दैट विल राइज, एंड देयर आर 2 रीजंस ऑफ लेवल ऑफ सी राइज। वन इज, जब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है एक्सपैंड होता है पानी, सुना है ना आपने, जब आप पानी को गर्म करते हो तो एक्सपैंड होता है ना, तो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होगा। सेकेंडली, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से पोलर आइस कैप्स भी जो हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत से जो ग्लेशियर्स हैं वो रिसीड हो रहे हैं। तो वो क्यों रिसीड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। Because of increase in sea level, because of melting of polar ice caps and because of thermal expansion, पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और जब पानी का लेवल बढ़ रहा है, जो एडजॉइनिंग एरियाज होंगे, जो लो लाइंग एरियाज होंगे, एस्चरीज होंगे, आइलैंड्स होंगे या कोस्टल एरियाज होंगे, जैसे सिटीज है, शंघाई है, ढाका है, या डिफरेंट जो कोस्टल एरियाज होंगे, they will get inundated, they will be submerged, and ultimately it will cause loss of life, loss of property, loss of कैटल्स। तो पूरा नुकसान जो होगा लाइफ पे होगा एंड प्रॉपर्टी पे होगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी डिक्रीज होगी। जो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, वो वाले प्लांट स्पीशीज जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। देखा गया है कि जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा उतना उतना प्लांट्स के लिए फायदेमंद है, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, फोटोसिंथेटिक रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्टिलाइजेशन इफेक्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ पेस्ट, आपने देखा होगा ना गर्मियों में मच्छर, कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। आई एम ऑडिबल? यस मैम। साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पेस्ट वगैरह हैं, जो पैथोजन है, वो भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस जो है प्लांट्स में बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो है दैट इज नेगेटेड बाय दिस various negative effects caused by various pathogens, various diseases, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। इसी तरीके से अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ होगी। फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले इफेक्ट होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन इफेक्ट होंगे, पूरा का पूरा एक्वेटिक बायोटा जो होगा वो इफेक्ट होगा। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो भी पानी में डिफ्यूज होगा, तो ओशन एसिडिफिकेशन भी होती है। इसी तरीके से इतना ही नहीं, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक साइड से जो वाटर, जो सॉइल में वाटर होगा वो कम होता जाएगा, पर साथ ही साथ कुछ जगहों पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। तभी हम देखते हैं, जब आजकल आप देखते हो कि दुनिया के एक कोने में या
कंट्री के एक कोने में ड्राउट होता है और दूसरी साइड फ्लड्स होता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिजीजेस जो होती हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, मच्छर, मस्कीटो वगैरह जो है और बाकी पैथोजन जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. जैसे अभी हम कोविड पैंडेमिक है तो हम कहते थे कि नहीं ठंड है तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी. तो जो जितने भी मस्कीटोज वगैरह जो हैं, जो डिजीज वगैरह हैं वो ज्यादा इफेक्ट कॉज करते हैं. और जहां पे पहले ये डिजीजेस नहीं होती हैं, ये पैथोजन नहीं होते हैं, ये डिजीज वेक्टर्स नहीं होते हैं, ये शिफ्ट करते हैं और वहां पे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं. और देन व्हाट आर द वेरियस सॉल्यूशंस टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? कोई मुझे बता सकता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? यस, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, एफॉरेस्टेशन. हाँ जी, क्योंकि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसमें वाटर वेपर्स भी बहुत एब्जॉर्ब करता है. लेकिन वाटर वेपर तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मेंटेन्ड है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बाकी नाइट्रस एसिड रिलीज होता है, बाकी मीथेन होता है रिलीज. तो हमें लिमिट करना है पॉपुलेशन को, हमें डिफॉरेस्टेशन कम करनी है, हमें एफॉरेस्टेशन ज्यादा करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ ज्यादा यूज करना है, हमें 5 R अपनाने हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, डीज, रिक्लेम. हमें ये चीजें अपनानी है, हमें लिमिट करनी है अपनी वॉन्ट, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करना है, जिस वजह से हम दिस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो कम होगी, या ग्रीन हाउस एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम होगा. अब जैसे ग्रीन हाउस के आपके प्रोटोकॉल्स भी हैं, तो ग्रीन हाउस के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे है? क्योटो एक जगह है जापान में जहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल हुई है, जहाँ पे दिस basically Kyoto Protocol is meant to reduce the greenhouse gases. Basically सबसे पहले अर्थ समिट आपने सुना होगा रियो डी जेनेरो में ब्राजील में 1992 में हुआ था, जिसका मेन पर्पस ग्रीन हाउस गैसेस. सबसे पहले जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो हुई है 1972 में हुई है. आई रिपीट 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, वो 5 जून को स्टार्ट हुई थी, 5 जून 1972 को. और तब से ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेटा कब होता है? यस, एनी एमएससी स्टूडेंट कैन आंसर दिस. 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो वो कब हुआ था? क्योंकि जब हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, 5 जून को स्टार्ट हुआ, तो तभी से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये रियलाइजेशन हुई कि आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग डिग्रेडेड. इट इज हाई टाइम दैट वी नीड टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल, टू improve the state of our environment, and that is why head of different states met at this Stockholm and thought of taking preventive measures to control, to protect our environment from deleterious effects, from harmful effects from anthropogenic activities which are causing damage to our environment. तो 1972 से ही, फिर उसके 20 साल के बाद 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में हुई, जिसमें 194 कंट्रीज ने इसको साइन किया और वहां पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुई, अडॉप्ट किया गया. और 94 में वो अडॉप्ट किया गया. और 1995 के बाद हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती जाती है, जहां पे डिसाइड किया जाता है वेरियस concerns regarding various agreements regarding reduction in greenhouse gases. और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड, जब तीसरी बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्योटो में हुई, वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि हर एक की डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे बाय 5.2% अगेंस्ट 1992 लेवल्स. मतलब 1992 लेवल में जो परसेंटेज थी उसे 5.2% जो है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे. और जो इसका कमिटमेंट पीरियड था
दैट वाज बिटवीन 2008 टू 2012 कि 2008 से लेके 2012 तक जो है वो इसको रिड्यूस करेंगे। और फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 17 हुआ जिसमें बताया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। आई डोंट नो वेदर आई हैव टू गो इनटू डिटेल। सर मैंने ये डिटेल में इनको बताना है? थोड़ा सा डिटेल हो जाए, फिर समझ में आ जाए। बस ठीक है मतलब सर मैं ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बस ये हो जाए कि ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और उसके एक आध दो लाइन में उसकी फाइंडिंग क्या है। जी जी हाँ जी। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो में जापान में एक जगह है 1997 में ये प्रोटोकॉल हुई, जिसका मेन थ्रस्ट एरिया है कि किस तरीके से कि डेवलप्ड कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, जो कि 1992 लेवल्स में है, और कब तक रिड्यूस करना है, 2012 तक। और उसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल्स। फिर इसी प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया 2012 में, दोहा अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, लेकिन वो इतनी फायदेमंद साबित नहीं हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगेन ग्रीन हाउस एमिशंस के मिटिगेशन के बाद की गई कि कहा गया कि 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना है दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को। और उसका जो कमिटमेंट पीरियड है वो 2012 से लेके 2020 तक दिया गया। और जो अभी रिसेंट कन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद डिफरेंट कन्वेंशन हुई, जो जिसपे जैसे आपको पता होगा बाली में हुई कन्वेंशन, जो कि जिसमें पहले जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही बाइंडिंग थी कि उन्होंने कंट्रोल करनी है ग्रीन हाउस गैसेस, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं था। लेकिन बाली में कहा गया, इंडोनेशिया में कहा गया कि नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को भी कम करना है। और इसी पे बहस चलती गई। फिर कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हुई 2009 में, जो आपको पता है कि बहुत पहले लग रहा था कि सक्सेसफुल होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी फेल हो गई, जो कि बहुत फेलियर माना जाता है हिस्ट्री में। फिर उसके बाद कैंटन कॉन्फ्रेंस हुई, यही डिसीजन जो कोपेनहेगन में जो मीटिंग हुई थी, जो वहां पे डिसाइड हुआ था, उसको ड्राफ्टिंग उसकी गई और ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। और अल्टीमेटली जो है पेरिस एग्रीमेंट तक पहुंचे, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी कहा गया कि आपने भी रिड्यूस करना है इस ग्रीन हाउस गैसेस को, और कहा गया कि लिमिट करना है ग्रीन हाउस गैसेस को ताकि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़े। 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक ही टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और जो अभी आपको पता है 2019 में जो मैड्रिड समिट हुई थी, उसमें भी काफी रहा जो ग्रेटा, वो भी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अल्टीमेटली जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बताया गया कि गैस एमिशन जो है इतनी होनी चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। और 2020 में यूके में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड वो पोस्टपोन अभी फिलहाल हुई है। तो मतलब अभी तक जो है क्योटो प्रोटोकॉल is basically meant to reduce the greenhouse gases, and it has 2 commitment periods. One was between 2008 to 2012, दूसरा था 2012 to 2020, जिसपे ये पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो होता गया, और अभी तक उस पर बात चल रही है कि किस तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए वगैरह जो है वो अभी इससे नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्कशंस अभी तक चल रही हैं। लेकिन बहुत हद तक, हालांकि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन बहुत हद तक बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं जो कि फायदेमंद प्रूव हो रहे हैं, जैसे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है या कार्बन ट्रेडिंग हो रही है कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी दे देते हैं डेवलपिंग कंट्री को कि जाओ जी आप ऐसा, मतलब हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते जाएंगे। लेकिन इस क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से उनमें ये प्रोविजन होता है कि हो सकता है कि वो डेवलपिंग कंट्री में कोई ऐसा पैसा दे दें या टेक्नोलॉजी दे दें कि वो डेवलपिंग कंट्री में ग्रीन हाउस एमिशन कम हो जाए, ताकि वो कार्बन क्रेडिट लेके वो ले जाएं और अल्टीमेटली ओवरऑल जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होगा वो कम होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस greenhouse effect, global warming, its damage caused by this greenhouse effect, and the ways to protect to prevent this greenhouse effect. Any doubt, any clarification regarding this? बच्चों कोई ग्रीन हाउस के बारे में या जो प्रोटोकॉल हुआ, प्रोटोकॉल के बारे में मैडम बता रही है, उसके बारे में कोई डाउट हो तो आप बात कर लें, लेकिन बात करके उसके बाद में आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करें।
आप लोग माइक्रोफोन ऑन किए रहते हैं, अपनी बात कह के उसके बाद माइक्रोफोन ऑफ कर लें। तो जो भी आपने सुना, ओजोन डिप्लीशन सुना आपने, या ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, या ग्रीन हाउस गैस की बात हुई, या ये प्रोटोकॉल्स की बात हुई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप लोग पूछ लें। यस मैम। हाँ भैया, क्योटो प्रोटोकॉल का पूछना था, कम होना। हाँ जी बताओ, हाँ जी बताएं। भेज दिया। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। हाँ जी बताओ, क्या पूछना है बेटा उसमें? भेज नहीं पाए थे मैम ये पूछना था, मतलब ये होता है जैसे आपने बताया उसके बारे में पूरा, तो वो समझ में आया, बट ये होता रात क्या में है, क्या मतलब हुआ ना इसमें कि थोड़ा सा कंप्यूटर खोले नहीं समझ में ठंडक आया। रजाई में घुसे अच्छा थे। बेटा, ये इसका मीन्स क्या होता है? हाँ मैं बताती हूँ क्या बेसिकली ये क्या होता है। ये मीटिंग होती है, ठीक है, कन्वेंशन होता है ना, गैदरिंग होती है, भेज दिया। डिफरेंट कंट्रीज के हेड मिलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। बुला लो। इतना समझ आया? यस मैम। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है कन्वेंशन बनी, तो वहां पे डिसाइड किया गया, बातचीत हो गई, नेगोशिएशन हुआ कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। तो उसी के तहत एक प्रोटोकॉल हुई, एक ट्रीटी सी हुई, एक कुछ एक ड्राफ्ट बन गया, मतलब नेगोशिएशन जब हुई तो एक ट्रीटी बनी कि एक डिसीजन हुआ कि हाँ जी, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को ये कह दें कि आपने 5.2% 1992 लेवल से कम करनी है ग्रीन हाउस गैसेस, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बच सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी उसे नहीं होगी। तो मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको कहा गया ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, तभी है कि इन प्रोटोकॉल से कंट्रीज जुड़ भी सकती हैं और कंट्रीज विड्रॉ भी कर सकती हैं। तो मतलब ये डिसीजन लिया वहां पे कि मीटिंग होके, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल एक मीटिंग हुई जहां पे डिफरेंट कंट्रीज के हेड्स को कहा गया कि आपने इतने ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम करनी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इज दिस क्लियर? ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसमें कहा डिफरेंट देशों को कि आप मानो या नहीं मानो। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका नहीं मानता है, ठीक है ना? समझ आया बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। मैम ओके, हाँ जी बेटा। मैम ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो जब स्ट्रेटोस्फीयर में जब जाता है तो उसका जो O3 से जो रिएक्शन होता है उसको मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। वो रिएक्शन मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही है कि वो क्या बनाएगा। अच्छा बेटा मैं पेज पे लिख लूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं वो शेयर। अच्छा या आप ऐसे, मैं लिखते जाती हूँ ना, आप लिखो, आप लिखो CFC, यस मैम। उसको आप लिखो कि एरो बना दो, एरो, और लिखो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे एक्ट कर रही है स्ट्रेटोस्फीयर में, यस और रिलीज कर रहा है वहां पे क्लोरीन। इसका इंटर है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मतलब इसमें से क्या रिलीज हुआ? CFC को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे गिरी और क्या रिलीज हुआ उसमें? क्लोरीन। इतना समझ आ गया? यस मैम। अब ये जो क्लोरीन है तो किसको ये डिप्लीट कर रहा है? O3, ओजोन। O3 को। अब ये क्लोरीन के साथ आप O3 लिखो, क्लोरीन प्लस O3, यस मैम। क्लोरीन प्लस O3, तो क्या बनेगा? ClO प्लस O2। यस मैम। बना ना? क्या बना? क्लोरीन ऑक्साइड और O2। मतलब इसने एक ओजोन को तोड़ दिया, यस मैम। टूट गया ना एक ओजोन। तो अब आपके पास क्या मिला प्रोडक्ट? क्लोरीन ऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। अब यही वाला ClO आप लोग, जो प्रोडक्ट आया ना आपका ClO प्लस दूसरा वाला ओजोन लाओ। ओके मैम। तो अब आएगा क्लोरीन प्लस ट्वाइस O2। बनी ना रिएक्शन, क्लोरीन प्लस ट्वाइस। अब एक क्लोरीन एटम ने कितने ओजोन को तोड़ा? 2 ओजोन को। 2 ओजोन को। और क्लोरीन वापस आ गया सेफली कि नहीं? यस मैम। मतलब आपने एक ही क्लोरीन एटम यूज किया ना बेटा? यस मैम। मतलब ये चेन रिएक्शन चलेगी। अब यही जो आपका प्रोडक्ट आया, अब आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आया? क्लोरीन प्लस ट्वाइस O2।
यस मैम। मतलब एक क्लोरीन एटम ने 2 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ा ना, यस मैम। और खुद सेफली वापस आ गया ना फिर से। तो यही क्लोरीन एटम दूसरे ओजोन को तोड़ेगा, ये तो एक चेन रिएक्शन चलेगी ना बेटा। मैम एक क्लोरीन एटम जो है वो कितने ओजोन लेयर मतलब कितने ओजोन एटम को तोड़ सकता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, ये चेन रिएक्शन है। देखा गया है कि एक क्लोरीन एटम जो है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। एक क्लोरीन एटम, ये चेन, इट वुड बी अ चेन रिएक्शन, इट वुड बी अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो एक क्लोरीन एटम जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस, ये देखा गया है मिनिमम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। आप खुद सोचो, अगर एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है तो वो न जाने कितने क्लोरीन एटम होंगे, अगर इतने ज्यादा क्लोरीन एटम्स होंगे तो वो कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नीड टू बी फेज्ड आउट, एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली दे हैव बीन कंप्लीटली फेज्ड आउट इन डेवलप्ड कंट्रीज इन 1996 एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अभी मैंने बताया 2010, but still we are experiencing the effect of ozone depletion. We are experiencing ozone depletion because whatever the ozone depleting substances have been used, they are still persistent in the environment. They are just getting transported from troposphere to stratosphere, where they are depleting various ozone molecules, thus causing ozone hole. Is this clear? यस मैम। ये पीपीटी हम लोग को मिल सकती है क्या? हाँ जी बेटा, मैं सर के साथ शेयर कर लूंगी। वैसे इतनी अच्छी पीपीटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी बना दी है, तो कोई बात नहीं, आई विल शेयर। मैं सर को दे दूंगी तो डेफिनेटली यू कैन गेट इट। अब मैं पूछूं कि मुझे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। तो दोनों लगा है, देखिए ठीक है। यस, अब मैं पूछूं। याद नहीं है अभी। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट? Yes, one thing I forgot to tell you कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, this is considered to be the most successful protocols. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने, जो रिडक्शन इन द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, this is considered to be the most सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल इसको माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी ओजोन की लेयर जो है वो उसकी थिकनेस बढ़ रही है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट हम देखने को मिल रहा है ओजोन लेयर में। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स, वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स व्हिच वी हैव सीन। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें हमें फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल जो है वो रिलीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी इतने फेलियर्स के, बहुत से मीटिंग्स के बाद, बहुत से कन्वेंशंस के बाद, बहुत से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद फिर भी कुछ ना कुछ डिसीजन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ हद तक जो है ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही हैं। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस भी जो है वो कम होता जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली क्लाइमेट चेंज जो है वो कम हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरियस प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू दिस वेरी greenhouse effect and ozone layer depletion. Yes, any other question? कोई और question? Yes. हम CFC की जगह और क्या यूज करते हैं? हाँ बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अब जो है ग्रीन फ्रीज हम इस्तेमाल करते हैं, और हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम यूज कर रहे हैं, या HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन,
these are used as for green fields, और अब जो है हम सीधा हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जो HCFCs और HFCs जो हैं ये ओजोन डिप्लीशन ये भी कॉज करते हैं, लेकिन इनका क्या फायदा होता है कि ये बहुत देर तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत जल्दी डिग्रेड 10 से 15 साल के बीच में ये डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ये अल्टरनेटिव्स हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। These are important greenhouse gases. That is why these are also to be phased out. तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया में हर जगह बेटा हर जगह डेवलप कंट्रीज में तो 20 तक तो वहां पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तो फेज आउट हो गए हैं, अब मोस्टली हाइड्रोकार्बन यूज किए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में सब में CFCs को बैन किया गया है, तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव्स यूज होंगे। अब अल्टरनेटिव्स जो यूज होंगे उन अल्टरनेटिव को भी सक्सेसिवली जो है आहिस्ता आहिस्ता जब इस्तेमाल किए गए तो देखा गया कि ये भी ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, और अगर ओजोन को कम डिप्लीट कर रहे हैं ये साथ ही साथ हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रहे हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी भी फेजिंग आउट की गई। जैसे मैंने कहा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है या हेलोन्स 94 में ही डेवलप कंट्रीज में बंद कर दिए गए, अपने प्रेजेंटेशन पे देखी होगी स्लाइड। इसी तरीके से CFCs कार्बन टेट्राक्लोराइड डेवलप कंट्रीज में 1996 में बंद किए गए, मिथाइल ब्रोमाइड 96 में ही फेज आउट किए गए। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पे 2010 में किया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड को 15 में किया गया, और जो HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है वहां पे 2020 तक कहा था इस्तेमाल करना, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 2040 तक एक्सटेंशन दी गई कि अभी हम 2040 तक जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दीस टू फिनोमेना। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सब समझ आ गया? थैंक यू मैम। So third, I will not confuse you anymore. मैं थोड़ा सा environmental laws के बारे में बता दूंगी, बहुत कम लिमिट करूंगी मैं उस चीज को ताकि आप बोर भी ना हो जाओ। Environmental laws जैसे मैंने अभी कहा कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी से ये रियलाइजेशन हुआ कि एनवायरनमेंट जो है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो तभी से जो है वेरियस जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट हुई 1972 में, वहां पे ही ये डिसाइड किया गया कि वेरियस लॉ किया जाए जो कि एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो 1972 में जब कॉन्फ्रेंस हुई, इमीडिएटली 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद जो 1972 बेसिकली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसमें ये भी है कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो मतलब आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लिव इन अ सेफ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आर्टिकल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इतना ही नहीं, हमारा आर्टिकल 48A of the Constitution provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 48A में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। एनवायरनमेंट में सब कुछ आएगा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उसको बचा के रखे। इतना ही नहीं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51AG जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी पार्ट 4 में है, जिसमें ये बताया गया है कि ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को। इतना ही नहीं, आर्टिकल 253 में जो है हमारा आर्टिकल 253 में डिफरेंट एक्ट्स बताए गए, जिसमें हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, जिसमें वेरियस
एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को बचाने की बात की गई। मतलब पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी हमारे संविधान में ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जिसमें मैंने आर्टिकल 21 कहा, राइट टू लिव इन सेफ एनवायरनमेंट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, आर्टिकल 48 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, आर्टिकल 51AG जो फंडामेंटल ड्यूटी में है। ये दोनों आर्टिकल 48 आर्टिकल और 51 आर्टिकल जो है ये 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ये। और आर्टिकल 253 में जो है वेरियस एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो जैसे मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो स्टॉकहोम में हुआ था, जिसके बाद हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके इमीडिएटली जो है वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए गए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया जो हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बनाया गया 1974 जो which maintains the quality and wholesomeness of the water, जिसमें इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को ये डायरेक्शन दी गई कि आप ट्रीटमेंट प्लांट के बिना पोल्यूटेंट जो है वाटर में नहीं डाल सकते हैं। इमीडिएटली उसके बाद वाटर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 आया, जिसमें ये कहा गया कि वेरियस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि कितना आप पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हो या कितना वेरियस जोन्स बताए गए कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह इंस्टॉल हो सकती हैं। इसी तरीके से और पेनल्टीज बनाए गए। इसी तरीके से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए जो कि अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी देखेंगे कि उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या उन प्रोविजंस के हिसाब से सिटीजन चल रहे हैं, और अगर जो नहीं मान रहा है दे आर पनिश्ड बोथ इन केस ऑफ फाइन एंड इन केस ऑफ in the form of imprisonment या सजा। that depends upon the किस किस्म का जुर्म है, what type of crime they are committing at that on that very basis they can be either fined or sent behind the bars। इतना ही नहीं, ये 1981 में हुआ, लेकिन उसके बाद आपको पता होगा 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई ना 1984 में। तो बहुत से प्रोविजंस जो थे वो लैग कर रहे थे। वो ना एयर प्रिवेंशन, मतलब उसमें किस तरीके से हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस उसका कोई प्रोविजन उसमें नहीं था। कंपनसेशन क्या देनी है वो उसमें नहीं थे। तो बहुत से लूप होल्स जो थे वो थे हमारे जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स थे। तो इसलिए एक नया एक्ट बनाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन सा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। अम्ब्रेला छाता होता है, वो हमें सब चीजों से बचाता है ना, या सब चीजों को कवर करता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया जो हमें सेफ गार्ड करता है। जो लूप होल, जो ड्रॉबैक्स बाकी एक्ट्स में थे, एयर में थे, वाटर में थे, तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया। और इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुई टाइम बाय टाइम। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में बहुत सी अमेंडमेंट्स भी हुई टाइम में। जैसे 1991 में इसमें एक अमेंडमेंट हुई जिसमें रेगुलेशन ऑफ कोस्टल एरिया, जैसे आपको पता होगा मन्नत जो शाहरुख खान का जो घर है वो कोस्टल एरिया में पड़ता था, तो उस पे इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ही तहत उस पे केस चला। इसी तरीके से 1994 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोविजन इसमें डाला गया कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उससे पहले असेसमेंट करना बड़ा जरूरी है, तभी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की उस एक्ट उस प्रोजेक्ट का कोई नुकसान तो नहीं होगा एनवायरमेंट पे, तो वो प्रोविजन भी एनवायरमेंट में ही डाला गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ही डाला गया। फिर बाद में 2016 में और इसमें अमेंडमेंट हुई जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स डाले गए, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो बहुत से फैक्टर्स जो कमियां थी बाकी एक्ट्स में थी वो इसमें डाले गए। और स्पेशली नॉइज का अपना कोई एक्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा ना एयर का अपना एक्ट है, वाटर का अपना एक्ट है, पर एनवायरमेंट का एज अ होल अपना एक्ट है, पर नॉइज का अपना कोई एक्ट नहीं है। तो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में डाले गए 2000 में। और फिर उसके टाइम पे अमेंडमेंट्स होती गई, चेंज होती गई 2010 में, 2017 में, और फाइनली फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 में बताया गया। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया, और ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है कि जो जल्दी expeditious disposal of cases जो होगा। तो this was all about various acts, various provisions in the constitution and the various acts which are meant for the protection of our environment. So it was all about environmental laws.
hope I could you could understand something. स्टूडेंट्स कुछ कोई भी क्वेरी दिमाग में हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अगले 5-10 मिनट में। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेरी उठ रही हो, मन में कोई भी प्रश्न हो जो आज के लेक्चर से संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के बाद अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हेलो हाँ जी, मैम, इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बार फिर से बता दीजिए। ग्रीन हाउस और इनहेंस Green- ग्रीन हाउस। sorry beta, you're not audible. Greenhouse effect or इनहेंस ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा मैंने बताया कि जो सन की रेडिएशंस हैं, अब ध्यान से सुनना, जो सन की रेडिएशन है डिफरेंट किस्म की रेडिएशन है ना, जैसे मैंने कहा अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, डिफरेंट किस्म की रेडिएशन सन एमिट करता है, लेकिन सारी की सारी रेडिएशन जमीन तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, वो जमीन तक वही पहुंचती है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, हेलो, यहाँ तक समझ आया? नमस्ते। यस मैम। ये जब जमीन तक पहुंचती हैं तो ये हीट रेडिएशन, ये एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं होती, ये सीधा ही आता है। किसी चीज को भी किसी चीज में तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, आप समझो ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लाइट को इसमें से ग्लास में पास करना है, इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी, अगर उसको वो एनर्जी, उतनी एनर्जी है तो ये इसमें से पास कर जाएगा। अगर उसमें वो इतनी एनर्जी नहीं है, वो इस ग्लास उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी बात समझ आ गई? यस मैम। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो वो पास कर लेगा, अगर कम एनर्जी होगी तो वो ग्लास इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस मैम। अब क्या होता है, जो सन की रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्ट वेवलेंथ और एनर्जी का अपोजिट रिलेशन है। वेवलेंथ शॉर्ट है तो एनर्जी उनमें ज्यादा है। ठीक है, यस मैम। उनमें एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, वो सीधा डायरेक्टली जमीन तक पहुंच जाते हैं विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो जो सन की हेलो let me answer first, then I will take your query. तो क्या होगा, वो जमीन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक बेटा समझ आ गया? यस मैम। जब वो जमीन पे पहुंचेगी वो क्या करेंगी, वो जमीन इनको एब्सॉर्ब कर लेगा और जमीन गर्म हो जाएगी। ठीक है, जब जमीन एब्सॉर्ब कर लिया तो जमीन गर्म हो गई। जब जमीन गर्म, जो भी कोई बॉडी गर्म होती है वो रेडिएशन एमिट करती है। सन भी इसलिए रेडिएशन एमिट करता है क्योंकि उसमें एनर्जी है, क्योंकि वो गर्म है इसलिए वो रेडिएशन देता है। तो जब जमीन गर्म होती है, जमीन भी गर्म होकर जमीन भी रेडिएशन एमिट करती है। इतना समझ आ गया? यस लेकिन जो जमीन उतनी गर्म तो नहीं ना है जितना सन गर्म है। नहीं। तो जमीन की जो रेडिएशन होंगी, जो जमीन रेडिएशन एमिट करेगी, वो करेगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब उनकी एनर्जी कम होगी पर वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, यस मैम। तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगी जमीन, तो ये वापस भेजेगी एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वो क्या कर देंगी, वो ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैं, जिनको हम हीट रेडिएशन कहते हैं, वो उनको पकड़ लेंगी, उनको ट्रैप कर लेंगी। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब उनको एब्जॉर्ब वो कर लेंगी, जैसे मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी कम है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो एब्जॉर्ब होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पास कर जाएगी। अब इनकी एनर्जी कम है तो ये क्या कर ले जाएगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी उस चीज को। जब एब्जॉर्ब करेगी तो वो ट्रैप कर लेंगी वो ग्रीन हाउस गैसेस उस एनर्जी को, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को जमीन पे वापस भेजेंगी। ठीक है, ठीक है। तो जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये फायदेमंद है, क्योंकि
अगर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं होती तो क्या होता, सन की रेडिएशन जमीन तक पहुंच जाती और वापस भी चले जाती। दिन को जब जब सन की रेडिएशन होती तो टेम्परेचर उस पर ज्यादा होता, जब सन की रेडिएशन नहीं होंगी रात के टाइम जमीन जो होती है बहुत ठंडी होती, ठीक है ना, मतलब तो हमारा टेम्परेचर जो होता है -18 डिग्रीज होता, हम जमीन पे सरवाइव कर ही नहीं पाते, जैसे मैंने कहा मून में हो रहा है। तो ग्रीन, इसको कहेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फायदेमंद है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम कब आ रही है, जहां एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये हर जगह तो नहीं ना है, ये फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है तो कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं पे और कोई गैस है, बीच बीच में है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां पे ग्रीन हाउस, जहां पे ये गैसेस नहीं है वहां से हीट रेडिएशन वापस जा रही है, बाहर निकल पा रही है एटमॉस्फेयर से। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये फैली हुई है एटमॉस्फेयर में। जो जमीन जब हीट रेडिएशन एमिट करती है, जहां जहां ये ग्रीन हाउस गैस है वहां उस हीट रेडिएशन को वो पकड़ रहे हैं, जहां पे नहीं है वो एस्केप कर रही है एटमॉस्फेयर में। समझ आ रहा बेटा? यू गेटिंग माय पॉइंट? धर्मेंद्र, समझ में आ रहा है? धर्मेंद्र, यस, समझ यस। रोहिना, आपको समझ आ रहा है? धर्मेंद्र जी, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ जहां जहां ग्रीन हाउस गैस है वो तो उसको पकड़ रही है, उस आउटगोइंग रेडिएशन को जो जमीन ने भेजी है, लेकिन जहां पे वो गैसेस नहीं है वहां से वो बाहर निकल रही है ना, वो बाहर जा रही है वो हीट रेडिएशन। तो जमीन का टेम्परेचर उतना ही रह रहा है जितना हमें जरूरत है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जब ये हो गया नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन एनहांस वो बढ़ना, एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अब हमारी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो थी 0.03 था, अब तो 0.04 पहुंच गई है कंसंट्रेशन। आपको पता है ना, 416 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन इसकी पहुंच चुकी है। आप जो बुक्स में पढ़ते हो ना 0.03, वो बहुत पहले क्रॉस हो चुका है। नाउ इट इज क्रॉस दैट लिमिट, नाउ इट इज रीच्ड 0.04, उससे ज्यादा हो रही है कंसंट्रेशन। तो अब जहां पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, जो खाली जगह थी जहां से आउटगोइंग रेडिएशन बाहर जा पा रही थी, अब वहां पे भी ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वहां पे भी वो उसको एब्जॉर्ब करके फिर से जमीन पे भेज देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया? यस मैम। It was all about your greenhouse effect and enhanced greenhouse effect. So greenhouse effect is very much beneficial, but enhanced greenhouse effect is very, very damaging, and it is causing, instead of calling it as global warming, it is causing climate change. We are finding extremes of temperature. Somewhere it is very hot, and at the same time, somewhere it is very cold. At some places it is flooding, and at some other places we are experiencing droughts. At some places there is carbon dioxide fertilization rate, but at the other place we are expecting famine. So we are experiencing extremes of temperature, which is causing climate change. And then that was the reason of establishment of adoption of United Nations framework on climate convention on climate change, which kept on organizing various meets annually. And recently we had 2019 meet in the form of this summit, which was held in Madrid, and 2020 it was expected in UK, but because of this COVID it was delayed, and now in 2021 it is expected. So it was all about your greenhouse gas, ozone layer depletion, then these laws. तो इतना काफी है, I suppose. रोहिना, यस सर। सबसे ज्यादा खुश रोहिना हो गई क्योंकि उसका नाम मैडम ने ले लिया, वो बहुत खुश है। हाँ सर, I could see her nodding. सर ये मेरा घर का नाम है, मेरा कॉलेज का नाम नूर शबा अंसारी है। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। बच्चों समझ आ रहा है? बोर तो नहीं ना हुए? यस मैम। मैम अच्छे से आ गया समझ में। थैंक यू सो मच सर। कुछ
बच्चों कुछ और बात मैडम की हम आपको रिकॉल करा दें। एक तो जैसे ओजोन की बात हो रही है, तो ओजोन लेयर की थिकनेस, आप किस थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? डॉब्सन यूनिट सर, डॉब्सन यूनिट। बच्चों याद है ना? अच्छा बच्चों DU 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 डॉब्सन यूनिट याद है ना? यस सर। जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और जैसे आपको एक वेबसाइट पर कोई चीज देखते हैं, लिखा रहता है, किसी भी हर वेबसाइट की शुरुआत होती है www। ये कोई बच्चा बताएगा ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा चलिए, वेब की स्पेलिंग, हाँ वेब की स्पेलिंग क्या होगी? वेब की स्पेलिंग क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब में वेब की स्पेलिंग क्या होगी? WEB। हाँ अब WEB का मतलब आप ध्यान से सुन लीजिए, जो मतलब है वो आपको पता है। कुछ हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं जो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो WEB ध्यान से आप सुन लीजिए, WEB आप रिलेट करिए, अपने माइंड को वहां ले जाइए। आप बोल समझिए कि W का मतलब वाटर, ध्यान समझिए, W का मतलब वाटर, E का मतलब अर्थ, और B का मतलब बायोडायवर्सिटी। फिर से हम बोल रहे हैं और नोट कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। वेब में W का मतलब आप समझिए वाटर, E का मतलब अर्थ, और B का मतलब बायोडायवर्सिटी। बहुत अच्छा ट्रिक है सर। अब देखिए दूसरा चीज देखिए, आप एक गिनती एक याद करिए, एक डिजिट याद करिए, एक तारीख याद करिए, 22 22। तो 22 को आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, मार्च से स्टार्ट करिए। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो WEB में W आपने बोला था, W के लिए हमने क्या बताया था? वाटर। तो जो वाटर डे है वो हो गया आपका 22 मार्च को। वाटर डे हो गया आपको 22 मार्च को। और अर्थ डे हो गया 22 अप्रैल को। अर्थ डे हो गया 22 अप्रैल को, और 22 मई को हो गया बायोडायवर्सिटी डे। 22 मई को हो गया बायोडायवर्सिटी डे। तो हमने WEB का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है कि लेटर ऑन आप भूल जाएं कि कौन 22 अप्रैल को था, कौन 22 मई को था। तो ये ध्यान रखेंगे, WEB है, वाटर है, अर्थ है, बायोडायवर्सिटी है। तो 22 मार्च को क्या हो गया? वाटर डे। 22 अप्रैल को क्या हो गया? और 22 मई को क्या हो गया? और अभी मैडम ने आपको याद कराया कि इन्वायरमेंट डे कब है? 5 जून को है ना। और ओजोन डे कब होता है? ये भी याद कर लीजिए, ओजोन डे 16 सितंबर। 16 सितंबर। यस सर। तो ये बहुत जानकारी पूर्वक बात, बहुत जानकारी वाला आपको जानकारी मिली, मतलब बहुत ज्ञान वाली जानकारी मिली आपको। हमारा भी मैडम ज्ञानवर्धन हुआ। हमारे विभाग के हमारे बहुत ही नियर डियर कुलीग डॉक्टर ब्रजेश मिश्र जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र सर, हेलो हेलो, डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी, हेलो डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर ब्रजेश जी, सर का माइक ऑफ है। माइक ऑफ। तो चलिए, ये 10 दिनों तक या 10 दिवसीय जो जूलॉजी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा दिन था। और तीसरे दिन की हमारी इमिनेंट स्पीकर
डॉक्टर नाजिया रसूल लतीफ़ी जी ने बहुत अच्छे ढंग से ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, कैसे प्रोटोकॉल बने, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई और ग्लोबल वार्मिंग से बेटर टर्म क्लाइमेट चेंज है, इन सब के बारे में मैडम ने बताया। मैडम ने यह भी बताया कि कैसे इन्वायरमेंटल लॉज हैं, कैसे किसके संदर्भ में लॉ नहीं है, कौन से लॉ हमको फॉलो करने चाहिए। हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस बात के लिए भी बहुत धन्य हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे महाविद्यालय को, हमारे विभाग को आपकी जरूरत होगी, आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ढेर सारे शेयर कर रहे हैं, आपके लिए तारीफ लिख रहे हैं, जो हमारे कार्यक्रम की और आपकी उपस्थिति की ही तारीफ है। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. May I- बाकी कल बच्चों, कल जो है 30 जनवरी है, और 30 जनवरी को हमारे एक और इमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर M.A. खालिद सर, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, वो आपके सामने उपस्थित होंगे और वो अपने ज्ञान से आपका वर्धन करेंगे। वो आपको बताएंगे जनरल सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और अन्य जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे एलिफेंट का प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, लायन है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो कल मैडम के आगे का लेक्चर प्रोफेसर M.A. खालिद सर कंटिन्यू करेंगे, तो कल हम लोग उसका आनंद लेंगे। और बिल्कुल मैडम हम लोग बोर नहीं हुए, हम लोग इस लेक्चर को पूरा एंजॉय किए, और सच कहिए तो हमने भी अपनी जानकारी में आपकी वजह से कुछ इजाफा किया, जो इस कार्यक्रम की सफलता का इंडिकेशन है। और कुछ बच्चे हमारे आर्ट्स वाले डिसिप्लिन वाले भी 8-10 जुड़े हुए थे, उनका भी कुछ ना कुछ जो नॉलेज है वो बढ़ा होगा। क्यों बच्चों, बढ़ा नॉलेज? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. कुछ आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई? यस सर, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। यस सर। तो चलिए मैडम, Yes, बहुत sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। बेटा थैंक यू सो मच।